legislature of any country. Even country has its parliament. हर एक country का parliament, which is an administration body. जो administration body होती है, and important decisions regarding the country and are well taken in the parliament. Good morning, student. This is class 4th GK, and today we will take chapter number 46 and 47. In chapter 46, we will learn about countries and their parliaments, and then chapter number 47, we will learn about earthly matters. So now, student, open the page number 54, chapter 46, countries and their parliaments. Parliaments is the national legislature of any country. Every country has its parliament, which is an administration body. Important decisions regarding the country and her welfare are taken in a parliament. पार्लियामेंट जो है वो हर एक कंट्री की अपनी एक पार्लियामेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है, जहाँ पर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमारी कंट्री के लिए या वहाँ जो काम होता है उसके लिए एक डिसीजन लिए जाते हैं. यस, सो वो कहाँ पर होते हैं? पार्लियामेंट में. सो हियर आर द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स. यहाँ पे कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट्स के नेम दिए हैं, तो राइट द नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट्स. उन कंट्रीज के पार्लियामेंट्स के नेम हमें यहाँ लिखने हैं. सो फर्स्ट कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? फेडरल पार्लियामेंट. सो फर्स्ट का आंसर है फेडरल, FEDRAL, फेडरल पार्लियामेंट. नंबर 2 पोलैंड. तो पोलैंड की पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? सेजम, SEZEM. नंबर 3 इज नेपाल. तो नेपाल की पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल पंचायत, NATIONAL, नेशनल, PANCHAYAT, नेशनल पंचायत. देन नंबर 4 ईरान. एंड ईरान की पार्लियामेंट को हम मजलिस के नाम से जानते हैं, MAJLIS, मजलिस. एंड नंबर 5 म्यांमार. एंड म्यांमार की पार्लियामेंट है पेथुहट्टो, PYITHU, हट्टो, HUHLUTTAW. Here this L is silent. Now next is 6 चाइना. इन चाइना की जो पार्लियामेंट है उसे हम कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस. नंबर 6 NATIONAL, नेशनल पीपल कांग्रेस. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 7 कनाडा. एंड कनाडा की पार्लियामेंट को हम जानते हैं किस नाम से? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सीनेट. सो नंबर 7 कनाडा. इसका आंसर है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सीनेट, SENATE. नंबर 8 इंडिया. और इंडिया की पार्लियामेंट को हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं. लोकसभा एंड राज्यसभा. देन नंबर 9 जर्मनी. जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बुंडस्टैग एंड बुंडसरैट, BUNDESTAG, Bundestag and Bundesrat, DESRAT. Then number
Japan, and the answer is Diet. 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 The Parliament of Japan is Diet. Then next number 11. Bangladesh. The Parliament of Bangladesh is Jatiya Sansad. JITIASANSAD. Jatiya Sansad. Then number 12 is the Netherlands. नीदरलैंड के पार्लियामेंट को हम जानते हैं द स्टेट जनरल. THE the STATE स्टेट जनरल. GENERAL. Number 13, Afghanistan. The answer is National Assembly. NATIONAL. National Assembly. ASSEMBLY. National Assembly. And then 14 number पर है Brazil. And the Parliament of Brazil is Congress. CONGRESS. Now then उसके बाद है IQ test question. What is the House of Commons? House of Commons क्या है? Parliament of UK, United of Kingdom. So IQ test question का आंसर है Parliament of UK, United Kingdom. Now, value-based question knowledge. House of Parliament, यानी Great Britain, the construction was completed in 1870. The House of Parliament, Great Britain जो है उसका construction 1870 को complete हुआ था. And now, did you know that there are many countries where parliaments name are same? यहाँ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पार्लियामेंट्स के नेम सेम है. सच एज जैसे नेशनल असेंबली इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट. नेशनल असेंबली कौन कौन सी कंट्रीज की पार्लियामेंट के नेम है? फर्स्ट इज अल्बानिया, अल्जीरिया, बुल्गारिया, फ्रांस, इराक, एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 47, earthly matters. So first question is write the correct word to complete the following sentences. First, a hill of sand formed by the wind is called. जो wind से जो sand कलेक्ट हो जाती है और hills बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? dunes. So first का आंसर है क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, उसका आंसर है dunes. DUNE. dune. Number second, the place where two rivers meet is called a. वो जगह जहाँ पर दो रिवर आपस में मिलती है. The answer is confluence. CONFLUENCE. confluence, that means संगम. यानी संगम वो जगह होती है जहाँ पर टू रिवर्स आपस में आकर मिलती है. Then number third, when hot water and steam shoot up out of the earth, it is called. वो जगह जहाँ से वो चीज़ जो जिसमें हॉट वाटर और स्टीम अर्थ में से एकदम निकल के आती है बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? गीजर. सो नंबर थर्ड में आंसर आएगा GEYSER. सो टिक द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड, अ लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली down a mountain is called a glacier. So right answer glacier. So एक लैंड मास आइस का जो बहुत ही स्लोली मूव होता है माउंटेन से. So the answer is glacier. 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 Then number 5 is a low-lying area of land which remains waterlogged is called a marshland. Number 5 का आंसर है MARSH, marshland. Then next is question number B. Question number B is complete the name of the word great by reading the clue using the help box. यहाँ हेल्प बॉक्स है जहाँ पे कुछ क्लूज हैं, उन क्लूज
क्लूज को रीड करके हमें जो वर्ड की ग्रिड्स है उसे हमें फिल करना है. सो फर्स्ट क्लू इज एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में एक ओपन स्पेस, यानी जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ ट्रीज होते हैं, लेकिन उन फॉरेस्ट में कई जगह ऐसी आती है जहाँ बिल्कुल प्लेन होता है और ओपन स्पेस होता है. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड ग्लैड. तो फर्स्ट बी का फर्स्ट है ग्लैड, GLADE. नंबर 2, a deep gorge with very steep side. The answer is canyon, CANYON, canyon. That means घाटी जिसे हम कहते हैं. The next number 3rd, a soil containing fertile deposits of clay, silt and sand left by flood water. And the answer is alluvium. Okay, ALLUVIUM, alluvium. And the number 4th is an area of the coast where the land curves inwards. And the answer is bay, BAY. Then last, number 5, a narrow area of water that joins two large areas of water. एक नैरो एरिया, छोटा सा एरिया वाटर का, जहाँ पर दो बड़ा एरिया, वाटर की बड़ा एरिया जो है वो आपस में मिलते हैं. द आंसर इज स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट. दैट मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं जल संधि. देन नाउ आई टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the percentage of oxygen in the earth crust? अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? The answer is 47. And did you know that an iceberg is a huge mass of ice that breaks away from the ends of great glacier in the polar and drift away into ocean. आइसबर्ग वो लैंड मास है आइस का जो आपने देखा होगा वाटर बॉडीज के बीच में नजर आता है, यानी कि जो ग्लेशियर्स है वहाँ से निकल के वाटर बॉडी के बीच में होता है, और ये वो पार्ट होता है, इसका कुछ ही पार्ट होता है जो हमें वाटर बॉडी के ऊपर नजर आता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस आइसबर्ग जो है वो वाटर बॉडी के अंदर होता है. सो नाउ स्टूडेंट, लर्न दीज चैप्टर्स एंड डू दिस वर्क इन योर बुक. थैंक यू.